Hello students, how are you all? I hope you are good and learning very well. Now in today's video we'll be doing the second chapter, or you can say we'll be starting off with the second chapter, A Gift of Chappals, okay, from your NCERT textbook Honeycomb. Now before starting the chapter we'll be reading these lines above here. Okay, now let's begin. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. So, this story revolves around many characters named Mridu. Mridu is a young girl. Okay, and this story is as you can easily know that कि in names के through and the चेन्नई जहाँ word आया so means ये लोग साउथ में रह रहे हैं, so they having name तभी तापी, ताथा, रुकुमनीज, तो ये नाम अपन को इसलिए ऐसे सुनाई दे रहे हैं because the name in south are generally are like these only. So in this story we see Mridu, a young girl, and she is living with Tapi with her grandparents, and one day Tapi decides to take Mridu to her auntie's home. Auntie Rukumani, who is Rukumani? Another character of this story. She is aunt of Tapi. And why they went to Rukumani's house? To meet her cousins. So another characters are Lali, Ravi and Meena. So Lali, Ravi, Meena and Tapi are cousins, and Mridu is a random young girl. Now let's begin with the chapter, A Gift of Chappals. Smiling, Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slipper, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear marks of every toe on the front of each slipper. The marks are two big toes, were long and scrawny. So when the story starts from here that Tapi and Mridu already reached the home of Rukumani, Tapi's aunt, and Rukumani happily opened the door, and as soon as she opened the door, Ravi and Meena, okay, they come rushing. जैसे अपन को खुशी होती है ना कि अपन के cousins जब घर आए, अपने brother sisters जब आते हैं, we are so happy, we are so excited. So Mridu, Ravi and Meena, they both got excited and they are trying to pull Mridu. कि अपन जैसे किसी को भी अगर अपन को कुछ दिखाना होता है तो अपन कहते हैं ना let's go, चलो come on, let's quickly go and see whatever. So Ravi pulled Mridu inside the home, but Mridu protested. Protested means complained. उसने कहा no, wait, just let me take off my slipper and I'll come inside. वो बोल रही है कि just wait please, I want to remove my slipper. So she removed her slipper and kept neatly near the pair of the black one. उसने कहाँ रखे अपने स्लीपर? एक और चप्पल्स के पास, जो कि वो बता रही है दैट दोज वर ग्रे, एक्चुअली विद डस्ट. कलर से वो ग्रे नहीं थे क्योंकि उसके ऊपर इतनी डस्ट थी, मतलब मिट्टी आई हुई थी इतनी, तो वो इतना ग्रे लुक दे रही थी, नॉट लुकिंग सो गुड. एंड इवन उस चप्पल के ऊपर अपने टोस के प्रिंट्स आ रखे थे, माइट बी ड्यू टू अगेन डस्ट. सो वो बता रही है कि जो उस टोस से देख के ये पता चलता है कि दोज मार्क्स ऑफ द टो आर बिग टोज एंड स्क्रॉनी टू. मतलब जो टोज़ हैं, जिसकी भी चप्पल है ये, उसके टोज़ काफ़ी बड़े हैं एंड स्क्रॉनी भी हैं. स्क्रॉनी मीन थिन. Next paragraph. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her into to the backyard behind a thick bitterberry bush.
There, inside a torn football lined with sacking and filled up with sand, lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shell. So now we here get to know कि why Ravi was dragging. Dragging means खींचना, कि वो मृदु को खींच क्यों रहा था, because she want her to visit backyard. And what is backyard? Area behind the home. ओके जहाँ पे गार्डनिंग होती है, और माइट बी अ प्लेस वेयर आर बुशेज आर देयर. तो वहाँ पे वो रवि मृदु को लेके जाता है एंड ही आस्क मृदु टू सी नियर द बिटर बेरी बुश. एक बुश के पास दिखाता है. एंड व्हाट दे सॉ देयर, दे सॉ अ टोन मीन्स एक फटी हुई फुटबॉल थी एंड इट वॉज फिल्ड विथ सैंड. एंड देयर दे कैप्ट अ वेरी स्मॉल किटन बेबी ऑफ अ कैट. वहाँ पे उस फुटबॉल की जो फटी हुई फुटबॉल थी, तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, उस फुटबॉल के ऊपर एक किटन है. एंड किटन वॉज लैपिंग अप मिल्क. लैपिंग मीन्स लिकिंग मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ. जैसे कोकोनट को अगर अपन हाफ करेंगे तो वो एक अपन को बोल कटोरी की तरह शेप में मिल जाएगा, तो उस शेप के अंदर मिल्क था एंड वो किटन उससे मिल्क पी रही थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. We found him outside the gate in this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. Now मीना जो ये वाला पैराग्राफ है, मीना बता रही है दैट वेयर दे फाउंड दिस लिटिल कैट. तो उनको कहाँ मिली, गेट के बाहर, उनके खुद के गेट के बाहर. और वो कह रहे थे कि हमें इस पर पिटी आ गई, क्योंकि पिटी मीन्स तरस. ओके, सो दे पिटी ऑन दैट लिटिल कैट बिकॉज दैट किटन वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग. म्यूइंग मीन्स साउंड मेड बाय अ कैट. And she continues to tell Ravi and Mridu that she also said that this was a secret, as their mother says their grandmother will leave the house if she knows that they had a cat in backyard. तो ये वाला जो बता रही है कि उसकी ग्रैंडमदर को पसंद नहीं आएगा अगर उनको पता चल गया कि अगर हमारे घर में कैट है. माइट बी द ग्रैंडमदर doesn't like animals. So, Pati means grandmother in Tamil. Okay, next paragraph from here. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her, I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. She wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour milk into this coconut shell and then ran back and washed the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think some other way to feed Mahendran. Okay, now in this paragraph, in the starting, Ravi is very complaining and he's saying, he's like shouting literally, मतलब वो बता रहा था, कंप्लेन कर रहा था कि हाउ अनफेयर एल्डर्स आर, मतलब ये ठीक नहीं करते. एल्डर मीन्स जो अपन से बड़े हैं. कि पहले तो वो कह रहे हैं कि क्रीचर मीन्स एक लिविंग बीइंग का पहले ध्यान रखा करो, बट जब हम उसका रियली में उसको साथ लाते हैं देन दे शाउट कि वाई यू ब्रिंग इट हेयर, थ्रो देम आउट. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, कि अगर आप कोई पेट लाए होगे तो कईयों ने तो आपको अप्रिशिएट करा होगा, बट कई होंगे कि नहीं नहीं यार प्लीज़ इसे दूर रखो, जस्ट कीप इट अवे, दे माइट बी डर्टी, दे माइट बाइट अस, और हाउ दे मेक आवर होम डर्टी. सो
फर्स्ट रवि से कि पहले हमें बताया जाता है कि पहले ध्यान रखो, बट देन द सेम एल्डर टेल्स अस टू कीप अवे दीज क्रीचर्स फ्रॉम अस, एंड देन ही नाउ ही रिवील्स दैट हाउ, रिवील्स मीन्स वो बता रहा है कि कितना हार्ड था, हाउ हार्ड फॉर रवि वॉज टू टेक मिल्क फ्रॉम द किचन टू फीड दिस लिटिल किटन. So he tells the stories like that कि when he wanted the milk from the kitchen, पाती came, मतलब उस रवि की जो ग्रैंड मदर है वो वहाँ पे आई, एंड शी सेड कि शी वॉज गिविंग अ सस्पिशियस लुक, मीन्स वो ऐसे सोच रही थी कि वाई रवि इज़ टेकिंग मिल्क, किसी को कहा क्यों नहीं. सो पाती टोल्ड हिम कि जस्ट गिव इट टू मी, आई विल वॉश इट फॉर यू. बट उसने रवि ने क्या एकदम से स्टोरी क्रिएट करी दैट नहीं आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. एंड वाई रवि सेड कि नहीं मुझे भूख लगी है और मैं पीना चाहती हूँ, बिकॉज शी वॉन्ट टू मिसलीड हर. आपकी लास्ट 4th लाइन में लिखा है थ्रो हर ऑफ द सेंट, मीन्स मैंने वो मिल्क इसलिए पिया ग्रैंड मदर के सामने ताकि उस ग्रैंड मदर को शक ना हो कि ये मिल्क कहाँ ले जा रहे हैं. सो थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स मिसलीड हर, so that she won't understand the real purpose of taking the milk. Now he explained कि ऐसे तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को कॉन्फिडेंस में लेके वो मिल्क तो ले आया, एंड ही poured that milk in the coconut shell and he ran back in the kitchen and washed the tumbler before it really got suspicious. नेक्स्ट पेज पे आपकी सेकेंड लास्ट लाइन है सस्पिशियस. सस्पिशियस मीन कि शक होना, कि जब तक किसी को शक होता तो वो टम्बलर को धो के आया. सो व्हाट इज़ टम्बलर? टम्बलर इज़ अ ग्लास विद नो हैंडल, एक ऐसा ग्लास जिसका हैंडल नहीं होता उसको टम्बलर कहते हैं. एंड इन द लास्ट ही से नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्र. फीड मीन्स टू गिव फूड. Now Ravi explained that it was very hard to bring milk for Mahindra. Who is Mahindra? Kitten. Kitten के नेम रवि ने महेंद्रन लिखा हुआ है. सो वो बाकी मृदु एंड मीना को कह रहा है कि अब कोई और हमारे को आइडिया ढूंढना पड़ेगा टू फीड महेंद्र. नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर. महेंद्र, द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र. Mridu was impressed. It was real name, not just a cute kitty name. Now मृदु क्या कह रही है, जैसे ही उसने कहा महेंद्र तो मृदु क्या उसको रिप्लाई कर रही है, एंड वेरी इन सरप्राइजिंग वे, एकदम सरप्राइज हो गई कि महेंद्र ये किटी का नेम नहीं लग रहा, इट इज़ अ रियल नेम फॉर किटन. लाइक जनरली पीपल एक्सपेक्ट और पीपल लिसन कि कैट का नेम कुछ एनिमल से रिलेटेड ही हो, बट यहाँ पे काफ़ी रियल नेम रवि ने रखा है उस कैट का, महेंद्र. एक्चुअली हिज फुल नाउ अब क्या रवि मृदु को रिप्लाई कर रहा है वापस बाय सेइंग दैट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पलवा पुनय, MP Punay for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of Asian Palwa king was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. Now Ravi is telling that कि एक्चुअली जो उसका पूरा नाम है महेंद्र पलवा पुनई, उस कैट का नेम है. लाइक some must be thinking like silly. It is silly to take to keep a name, such a long name for a kitten, but he explained कि why it is a full name given to that cat, because he explained that this cat is just not a normal cat. वो मृदु को बता रहा है ये कोई ऐसी सी कैट नहीं है, ये कैट एक फाइन ब्रीड है. फाइन ब्रीड मीन्स एक्सीलेंट एंड रेयर, एक ऐसा एनिमल जो कि काफ़ी उसकी जो ब्रीड है दैट इज़ एक्सीलेंट ब्रीड. और वो कैसे उसको बताता है कि जस्ट लुक, उस कैट का फर देखो, यू विल रियलाइज दैट इट इज़ अ फाइन ब्रीड. एंड कैसे बताता है उस फर को
लायन मेन से कंपेयर करता है। एंड व्हाट इज लायन मेन? लायन मेन इज वेरी फरी। जैसे अगर आपने लायन देखा होगा उसके हेयर्स काफ़ी फरी होते हैं एंड काफ़ी थिक होते हैं, वैसे ही उस कैट का फर था। सो उस कैट के फर को दिखाते हुए कह रहा है कि ये ऐसी रेगुलर कैट नहीं है, इट इज़ अ एक्सीलेंट कैट। एंड ये उस एम्बलम मीन्स एक सिंबल होता है, लाइक इन ओल्डन डेज इवन आवर फ्लैग हैज़ एम्बलम, ओके, ओ सॉरी, वी हैव नेशनल एम्बलम, एक ऐसा साइन जो कि एक कंट्री, एरिया और पहले के ज़माने में किसी किंगडम को रिप्रेजेंट करता था। इट इज़ रिटन इन सेकेंड लास्ट लाइन कि जो एम्बलम है कैसा है, द एशियंट पल्वास किंग डोंट यू। तो रवि पूछ रहा है कि तुमने कभी एम्बलम नहीं देखा एशियंट पल्वा किंग का? और एंड में वो क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, लुक्ड एक्सपेक्टेंटली, मृदु मीन्स कॉन्फिडेंटली, एंड येट उसको एक ऐसा लुक जहाँ पे वो इवन एक्सपेक्ट भी कर रहा है। वो तो कॉन्फिडेंट है एम्बलम के बारे में, बट वो मृदु से पूछ रहा है और इवन एक्सपेक्ट कर रहा है कि मृदु को भी पता होगा कि वो उस एम्बलम में क्या है। आफ्टर लिसनिंग दिस इट इज़ इन लास्ट इट इज़ रिटन मृदु गिगल्ड। ये सब जब भी जो भी रवि ने कहा ये सब सुनने के बाद मृदु गिगल्ड मीन्स मृदु लाफ्ड रिपीटेडली एंड लाफिंग इन अ वेरी सिली मैनर। कि अगर आपको कभी कोई ऐसी चीज़ कहते हैं, आपके अगर फ्रेंड्स ने आपको कोई ऐसी चीज़ बताई जिसको आप बिलीव नहीं करते या आपने देखा नहीं, यू स्टार्ट लाफिंग एंड नॉट बिलीविंग योर फ्रेंड। सो सिमिलरली मृदु इज लाफिंग एट रवि।